Hello everyone, welcome to 4Pi Academy classes, and today we are going to discuss very important and interesting topic of solid state physics, that is reciprocal lattices. Okay, so if you are new to this channel, please subscribe our channel, and if you like this video, press the like button, and you can also press the bell icon so that you can get the notification for the latest video. And you can also visit us on our website, that is www.4piacademy.com, and we have also a Facebook page. You can also visit us there. So first of all, we will discuss about the reciprocal lattice itself and its construction, how the reciprocal lattice is constructed. And second, we will discuss about the relationship between the direct and reciprocal lattice. Okay, and third, we will discuss the reciprocal lattice of simple cubic, body centered cubic, and face centered cubic lattice. And finally, we will discuss some problems from previous year question papers of NET and GATE. Okay, so let's start. I think that when we start a topic, first we should know why this topic is very important and why we need to study this topic. Okay, so as you know, if we want to describe the crystal structure, we need only direct lattice. Okay, अगर हम crystal structure को describe करने की बात करते हैं तो direct lattices से हम describe कर सकते हैं crystal structure को. But if we want to get some information about the structure of that crystal, means there are some atomic arrangement inside a crystal, and if we want to know the atomic arrangement inside the crystal, we need X-ray diffraction of that crystal. Okay, so basically X-ray diffraction is not a direct microscopic technique. Means in X-ray diffraction we get some peaks, black peaks, and we cannot see directly atom. ओके, सो अगर आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा है तो उसमें कुछ पीक्स मिलते हैं आपको. दीज पीक्स आर बेसिकली ब्रैग पीक्स, एंड डिफरेंट पोजीशन पे और डिफरेंट डायरेक्शन में आपको वो ब्रैग पीक्स मिलती हैं, एंड आपको डायरेक्ट एटम दिखाई नहीं देता इन एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर, बट यू हैव टू फाइंड द arrangement of these atoms by using this technique. Okay, so these peaks, these Bragg peaks, basically related to atomic planes in direct lattice. Okay, and the relationship is not direct. Okay, so what it means, एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर आपको कुछ ब्रैग पीक्स मिलती हैं. ये जो ब्रैग पीक्स होती हैं ये बेसिकली एटॉमिक प्लेन्स की पोजीशन को बताता है डायरेक्ट लैटिस के अंदर. ओके, आपने एटॉमिक प्लेन्स के बारे में पढ़ा होगा डायरेक्ट लैटिस के अंदर. अगर नहीं पढ़ा तो यू कैन गो एंड वॉच आवर वीडियो. वी हैव ए वीडियो ऑन एटॉमिक प्लेन्स इन क्रिस्टल. ओके, सो ये जो रिलेशनशिप होता है एटॉमिक प्लेन्स का और ब्रैग पीक्स का, ये डायरेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सम रिलेशनशिप. ओके, so this was a problem at that time, and the solution was given by the great Paul Peter Ewald. Okay, so he was a German physicist and crystallographer, and he discovered a new category of lattice, and इस category को, इस new lattice को हम reciprocal lattice कहते हैं. and basically ये रेसिप्रोकल लैटिस मोमेंटम स्पेस में होता है, और हम इसको के स्पेस भी बोलते हैं. ओके, सो डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस ये दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, एंड इन दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दिस इज रिलेटेड बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोकल लैटिस, कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, हाउ द लैटिस, दीज लैटिसेस आर कंस्ट्रक्टेड. Okay, so each set of parallel planes can be represented by the normal to these planes and having length equal to the reciprocal of the interplanar spacing. Means direct lattice के अंदर आपके पास set of parallel planes है, means parallel planes का कोई set है, तो उस parallel planes के set को आप represent कर सकते हो by द नॉर्मल टू दीज प्लेन्स. ओके, सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो आप डायरेक्ट लैटिस के अंदर सबसे पहले पैरेलल प्लेन्स का एक सेट चूज कीजिए. ओके, सो उस पैरेलल प्लेन्स के सेट पे आप एक नॉर्मल डालिएगा.
किसी आर्बिट्रेरी ओरिजिन से, और उस नॉर्मल की लेंथ इक्वल होनी चाहिए to the reciprocal of the interplanar spacing between these parallel planes. Okay, so in parallel planes के बीच की जो interplanar spacing होगी, जिसे हम DHKL से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रेसिप्रोकल हुआ 1/DHKL. तो ये जो 1/DHKL है, ये लेंथ होगी आपके नॉर्मल की, उस नॉर्मल की जो आप किसी ओरिजिन से इन प्लेन्स पे डाल रहे हो. ओके, सेकेंड थिंग, जो एंड पॉइंट होगा उस नॉर्मल का, उस पॉइंट को आप मार्क करेंगे एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए रेसिप्रोकल लैटिस. अंडरस्टैंड? आपको कुछ समझ में आया होगा. नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें रेसिप्रोकल लैटिस कैसे ड्रॉ करने होते हैं एंड रेसिप्रोकल लैटिस एग्जैक्टली क्या होते हैं, हाउ टू विजुअलाइज दीज रेसिप्रोकल लैटिस. ओके, सो एग्जाम्पल के लिए हमने एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस लिया है. ठीक है, इसकी साइड्स ए बी और सी इसके साइड्स हैं एंड एंगल अल्फा बीटा और गामा है. ओके, सबसे पहले यू हैव टू चूज द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इनसाइड द क्रिस्टल इन डायरेक्ट लैटिस. ओके, सो हमने एक प्लेन पैरेलल प्लेन्स का सेट कंसीडर किया. ये प्लेन आपका पैरेलल प्लेन्स हैं, तो मिलर इंडिसेस इस प्लेन के हैं 100 एंड इस प्लेन के भी मिलर इंडिसेस आपके पास 100 हैं. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पैरेलल प्लेन्स के बारे में, तो यू कैन गो एंड वॉच आवर प्रीवियस वीडियो विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द क्रिस्टल प्लेन्स. ओके, ये प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स हैं एंड दोनों के मिलर इंडिसेस सेम है 100. एंड we can also take another set of parallel planes. These two green planes are also parallel and इनके मिलर इंडिसेस 001 है. हमने एक और थर्ड प्लेन लिया है, दैट इज दिस प्लेन एंड इसके मिलर इंडिसेस हैं 101. ओके, सो ये आपका मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस है इनसाइड ए डायरेक्ट लैटिस. सो ओके, हमें इसके लिए हमें रेसिप्रोकल लैटिस बनाना है. ओके, सो फॉर कन्वीनियंस व्हाट वी डिड, these planes can be represented by the lines, these lines only for just convenience. okay, convenience के लिए ही हमने इन planes की जगह पे हमने सिर्फ lines को consider कर लिया. so this is 100 plane, so this line also represent a plane. okay, basically ये line नहीं है, this is a plane having Miller indices 100. so this line is also a plane having Miller indices 100. ओके, ये जस्ट इसलिए लिया है बिकॉज इन 3D में विजुलाइज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो जस्ट फॉर कन्वीनियंस हमने ये कंसीडर किया. ओके, सो दिस सेट ऑफ प्लेन 001 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन एंड दिस लाइन. तो इन दोनों लाइंस को मिरर इंडिसेस 001 हो जाएंगे. दिस प्लेन 101 इज बेसिकली दिस लाइन. ओके, नाउ वी चूज दिस पॉइंट एज एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन. ओके, ये आपका ओरिजिन हो गया और इस ओरिजिन से क्या करना है आपको रेसिप्रोकल लैटिस बनाने के लिए, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. ओके, सो हमने सबसे पहले 100 प्लेन का सेट चूज किया. सो यहाँ से आर्बिट्रेरी ओरिजिन से हमने एक नॉर्मल डाला इन प्लेन्स के ऊपर. ओके, 100 प्लेन के ऊपर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और इस नॉर्मल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, the length is equal to the reciprocal of interplanar spacing between these two planes. okay, so आपके नॉर्मल की लेंथ हो गई 1/DHKL. ओके, सो आपका ये एंड पॉइंट हुआ, नॉर्मल का ये एंड पॉइंट हुआ. तो आप इसको सपोज आपने इसको मार्क कर लिया, आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया. ओके, तो ये पॉइंट आपका हो गया 100 क्योंकि ये आपका 100 प्लेन पे डालने के बाद आपको मिला है. अगेन सिमिलरली आगे आपका कोई 200 प्लेन होगा. ओके, सो दीज टाइप ऑफ प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स. तो 200 प्लेन भी 100 प्लेन के पैरेलल होगा और कहीं आगे होगा. सो जो नॉर्मल आपने डाला था 100 प्लेन पे, वही नॉर्मल 200 प्लेन के लिए भी होगा. व्हेन यू ड्रॉ नॉर्मल टू दिस प्लेन 200 प्लेन एंड वो लेंथ इक्वल होगी टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द सेट ऑफ प्लेन हैविंग मिलर इंडिसेस 200. तो आपने जब 200 प्लेन पे नॉर्मल डाला तो इस नॉर्मल की लेंथ कुछ ज़्यादा हो जाएगी पहले वाले नॉर्मल की लेंथ से, और जो एंड पॉइंट होगा सपोज वो आपका यहाँ पे आता है. ओके, सो अगेन आपने इसको मार्क कर लिया, तो ये आपका हो गया 200.
ओके, अगेन आपका कोई और सेट होगा 300 प्लेन का, उसके लिए भी आपने सेम किया और पॉइंट एंड पॉइंट को मार्क कर लिया, दैट विल बी योर 300। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं इस सेट ऑफ प्लेन की 001 प्लेन के लिए। तो ओरिजिन से आपने इस प्लेन पे, दैट इज योर 001 प्लेन, ओके 001 प्लेन, तो ओरिजिन से आपने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, इस नॉर्मल की लेंथ भी होगी इन दोनों प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर। ओके, सो सपोज आपका नॉर्मल यहाँ एंड करता है। ओके, सो दिस पॉइंट यू मार्क दिस पॉइंट एज वेल एंड दिस विल बी योर 001। आगे भी आपने इस नॉर्मल को बढ़ाया ऑन प्लेन 002, तो उसके लिए आपका एंड पॉइंट हो गया ये। सिमिलरली आपका जो थर्ड प्लेन हमने ड्रॉ किया था, दैट इज 101 प्लेन, आपने ओरिजिन से उस प्लेन के ऊपर भी एक नॉर्मल डाला और जो नॉर्मल की लेंथ है वो इतनी है, एंड पॉइंट हुआ आपका यहाँ पे, इसको पॉइंट को आपने मार्क किया 101 प्लेन। ओके, सो इसी तरह से वी विल हैव सो मेनी प्लेन्स, एटॉमिक प्लेन्स इनसाइड दिस मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो उनके लिए भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। सो सिमिलरली वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ओके, सो आपकी इस तरह से सारे प्लेन्स पे आप नॉर्मल ड्रॉ करके उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको मार्क करके आप ये एक सेट बना सकते हो। ओके, सो दिस कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, ओके दीज पॉइंट्स is basically your reciprocal lattice system. Okay, I hope आपको कुछ समझ में आया होगा। Okay, so if you have still confused about the construction of reciprocal lattice to a direct lattice, आपको last slide में कुछ अगर confusion है तो let's revise quickly. So we have few steps here. आपको कुछ steps याद कर लेने हैं कि construction कैसे होता है। Okay, so सबसे पहला step आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट लैटिस के अंदर सबसे पहले आपको एक ओरिजिन चूज कर लेना है। ठीक है, आपका ये डायरेक्ट लैटिस में मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर था, तो सबसे पहले आपको एक ओरिजिन चूज करना है। आप कोई भी एक ओरिजिन चूज कीजिए आर्बिट्रेरी पॉइंट को, तो आपका ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो आपका ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बी योर वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको चूज करना है पैरेलल प्लेन्स के सेट को। ओके, लाइक ये 100 100 आपके टू प्लेन्स हैं, तो ये आपका एक सेट हो जाएगा पैरेलल प्लेन्स का। तो आपको क्या करना है, आपको इस आर्बिट्रेरी ओरिजिन से इन पैरेलल प्लेन्स के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइक दिस आपने एक नॉर्मल डाल दिया इस ओरिजिन से इन प्लेन्स के ऊपर। आपका थर्ड स्टेप कहता है कि जो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, इस नॉर्मल की जो लेंथ है वो लेंथ इक्वल होगी इन पैरेलल प्लेन्स के बीच के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपके नॉर्मल का जो एंड पॉइंट होता है आपको उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, लाइक दिस, ये यहाँ पे एंड होता है नॉर्मल, तो आपने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से आपको सभी पैरेलल प्लेन्स के सेट के लिए सिमिलर प्रोसीजर करना है, उन सभी एंड पॉइंट्स को आपको मार्क कर लेना है। तो फाइनली ये जो कंप्लीट सेट होगा इन पॉइंट्स का, इनको हम रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। तो दिस विल बी योर रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम। ओके, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। लेट्स मूव फर्दर। जैसे आपने डायरेक्ट लैटिस के अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ा है, वैसे ही इन रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम देयर इज ए वेक्टर विच इज नोन एज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ओके, एंड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन reciprocal lattice system equal to the reciprocal of interplanar spacing and having direction along the normal to the HKL plane. We represent reciprocal lattice vector by sigma and we are talking about the HKL plane. So for HKL plane आपका reciprocal lattice vector हो जाएगा sigma HKL and sigma HKL equal होगा 1 upon DHKL के, means the reciprocal of the interplanar spacing for this particular plane HKL plane and n cap will be there. So n cap is the unit vector and this vector is normal to this plane. Okay, so आपका ये हो गया reciprocal lattice vector. Okay, so as you know डायरेक्ट लैटिस के अंदर यू हैव यूनिट सेल्स। ओके, सो यूनिट सेल्स होते हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए आप प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो सेम लाइक इन रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम आपको वहां पे भी यूनिट सेल्स होते हैं जो बेसिकली पैरेललोपिपेड होते हैं। सो यू कैन फॉर्म द यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम बाय ड्रॉइंग द शॉर्टेस्ट नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द बेसिक प्लेन्स।
means 100 plane, 010 plane एंड 001 प्लेन्स। तो अगर आप ओरिजिन से इन 3 प्लेन्स के ऊपर शॉर्टेस्ट नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इससे आपका यूनिट सेल मिलता है रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम के अंदर। एंड यही रीजन है कि ये जो नॉर्मल्स हैं इनके जो रेसिप्रोकल हुआ वो आपके हो जाएंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ओके, सो सिग्मा 100 दैट विल बी 1/D100 एंड सिमिलरली सिग्मा 010 एंड सिग्मा 001, ये तीनों आपके हो जाते हैं फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। ओके, दीज 3 lattice vectors are very important. Okay, so now we will talk about the relationship between the reciprocal lattice and direct lattice. So this is very important because इस relationship पे ही there are so many things which depend on this relationship actually. And जैसा कि हमने पहले बात किया था why we need reciprocal lattice, तो उसमें हमने कहा था कि X-ray diffraction के अंदर you get Bragg peaks. Okay, and these peaks are related to atomic planes. So वहीं से reciprocal lattice system की बात हुई थी कि जो वो Bragg peaks थे, जो atomic planes थे, वो related थे वहाँ पे planes, atomic planes के ऊपर, but वो कहीं ना कहीं reciprocal lattice से ही depend करता है। So if we can relate the reciprocal lattice system to direct lattice system mathematically, so ये X-ray diffraction के अंदर उन Bragg peaks की position और उनके orientation को बताने में बहुत हेल्प होती है। सो इफ इन डायरेक्ट लैटिस वी हैव वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एज प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स एंड इन reciprocal lattice system we have sigma 100, sigma 010 and sigma 001 are fundamental reciprocal lattice vectors, so we can relate these two vectors. So just for convenience we take sigma 100 as vector A star. So this A star or sigma 100 will be 2 pi vector B cross vector C upon vector A dot vector B cross vector C. Okay, so we can also derive the mathematical expression for this relationship, but this is not that much important here. So you can just remember the formula of their relationship because this is quite important and easy too. Vector A star will be 2 pi vector V cross vector C upon vector A dot vector V cross vector C. Similarly, we have a relation for other two vectors. So V star, that is sigma 010, will be 2 pi vector C cross vector A upon vector A dot vector B cross vector C. And इसी तरह से आपका vector C भी हो जाएगा. So these 3 formulas are very important. Now we will discuss the reciprocal lattice to simple cubic lattice. Okay, so आपका simple cubic lattice है डायरेक्ट लैटिस के अंदर एंड आपको उसके लिए रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है। ओके, सो अगर आपका डायरेक्ट लैटिस के अंदर सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है, अगर आपको प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स उसके वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, ओके, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है जिसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आपको पता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। और आपको पता होगा सिंपल क्यूबिक में जो क्यूब है एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द साइड इज ए, जो क्यूब है आपका उसकी साइड ए है। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए आपका ए आई होता है, वेक्टर बी इज ए जे कैप एंड वेक्टर सी इज ए के कैप। ओके, सो ये आपके हो गए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सो आपको इसके लिए अब आपको निकालना है रेसिप्रोकल लैटिस। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो रिलेशनशिप है बिटवीन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, you have to use the relationship. Okay, you know A star equals to 2 pi vector B cross vector C upon vector A dot vector B cross vector C. Okay, so just you have to put the values of vector A, vector B and vector C here, and this is very simple, and you get A star equals to 2 pi by A I cap. Okay, similarly आपको B star मिलेगा 2 pi by A J cap and C star will be 2 pi by A K cap. Okay, so that means कि the reciprocal lattice of simple cubic lattice is also simple cubic. Okay, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है because these are the 3 translation vectors but the magnitude is same. That means कि reciprocal lattice जो हुआ वो आपका सिंपल क्यूबिक ही हुआ एंड उसका जो लैटिस कांस्टेंट है दैट विल बी 2 पाई बाई ए।
Okay, so this is very simple. Okay, so if we talk about the reciprocal lattice to body centered cubic lattice. Okay, body centered cubic के अंदर कॉर्नर्स पे लैटिसेस के अलावा, कॉर्नर्स पे एटम्स के अलावा यू हैव ऑल्सो एटम्स इनसाइड द लैटिस. ओके, सो आपका हमने ये 3 यूनिट सेल कंसीडर करे हैं एंड दिस विल बी योर आर्बिट्रेरी ओरिजिन. ये आपका ओरिजिन हो गया एंड यहाँ से आपने जितने भी पॉसिबल जो एटम्स हैं बॉडी के सेंटर्ड पे वाली पोजीशन पे जो आपके एटम्स हैं आपने उन पे वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए. सो सपोज दिस विल बी योर वेक्टर ए डैश, दिस विल बी योर वेक्टर बी डैश एंड दिस विल बी योर वेक्टर सी डैश. ओके, डोंट बी कंफ्यूज कि हमने ए बी सी क्यों लिया है. नॉर्मली हम क्रिस्टल के अंदर जो डायरेक्शन चूज करते हैं वो डायरेक्शन ऐसे ही होती है. ये आपका एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, बट हमने इसको ए लिया है. आप कन्वीनियंस के लिए कुछ भी ले सकते हैं. सो इसकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसके लिए हमने वेक्टर ए डैश लिया है. इस एटम के लिए यू टेक वेक्टर वी डैश एंड फॉर दिस फॉर थर्ड दिस विल बी वेक्टर सी डैश. तो अब हमें लिखना है कि वेक्टर ए डैश क्या होगा. ओके, सो ये आपका क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड सबका जो क्यूब का जो एज है दैट इज ए. दिस इज द center position of this cube. Okay, first you have to go half along this side. ठीक है, half along this side. Okay, that is Z and half along this side. Okay, so आपको half distance travel करना होगा Y में. ठीक है, half distance आपको travel करना होगा Z में, Z direction में, but this is positive Z axis and this is negative Z axis. तो Z के लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में चलना होगा एंड बॉडी सेंटर्ड है, आपको थोड़ा ऊपर भी आना है, आपको एक्स डायरेक्शन में भी चलना होगा. दैट विल बी योर इन पॉजिटिव डायरेक्शन. तो आप कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे? योर वेक्टर ए डैश विल बी a by 2. a by 2 व्हाई वी आर टेकिंग a by 2 बिकॉज दिस इज इन द मिडल पोजिशन. ओके, सो आपको एक्स वाई में भी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा एंड क्यूब एज इज ए, सो हाफ हो गया योर a by 2. ओके, सो आप x में भी हाफ डिस्टेंस चले, सो x के लिए यू हैव आई कैप हेयर. y डायरेक्शन में भी आप हाफ चले, दैट विल बी योर j कैप. बट इन z डायरेक्शन आप हाफ चले बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन बेसिकली, सो आपका माइनस k कैप हो गया. सो a डैश विल बी a by 2 आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. सो दैट विल बी योर प्रिमिटिव ट्रांसलेटर वेक्टर. सिमिलरली आप अदर पॉइंट्स के लिए भी यू कैन राइट द ट्रांसलेशन वेक्टर b डैश एंड c डैश. तो ये तीनों आपके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हो गए बीसीसी लैटिस के लिए. ओके, सो अगेन आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज द रिलेशन बिटवीन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स एंड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर. सो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है. ओके, फाइनली यू गेट a star equals to 2 pi by a I cap plus j cap, b star equals to 2 pi by a j cap plus k cap, and your c star is 2 pi by a k plus I cap. So BCC लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है उसके प्रिमिटिव जो वेक्टर्स होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होते हैं, वो ये होते हैं. और बेसिकली ये जो लैटिस वेक्टर्स होते हैं ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं. मीन्स what it means, reciprocal lattice to body centered cubic lattice is face centered cubic lattice. Okay, so आपका BCC lattice का जो reciprocal lattice होता है वो आपका face centered cubic होता है. Okay, okay, so now we will see the reciprocal lattice to face centered cubic lattice. So ये आपका एक structure है. This is your face centered cubic lattice in direct lattice system. ओके, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? वी हैव लैटिस पॉइंट और एटम्स एट ईच फेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ओके, सो ये सेंटर क्यूबिक है, फेस सेंटर क्यूबिक है, तो दिस बिग वन इज क्यूब, योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. और फॉर टॉप सरफेस दिस इज योर लैटिस पॉइंट, ये फेस पे है इस अपर साइड के. इसी तरह से दिस विल बी योर लैटिस पॉइंट एट द फेस पोजिशन ऑफ दिस साइड एंड इस नीचे वाले सरफेस पे दिस विल बी योर लैटिस एंड इस साइड में आपका दिस विल बी योर लैटिस ऑन द फेस पोजीशन ऑफ दिस साइड एंड
ओके, एंड बैक साइड में भी आपका ये लैटिस पॉइंट हो गया फेस पोजीशन पे. ओके, सो वी हैव 6 पॉइंट्स हियर. सो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को सपोज एक ओरिजिन चूज कर लेना है, एंड इस ओरिजिन को भी इंक्लूड करते हुए आपको इन सारे जो फेस पोजीशन पे आपके लैटिस थे उन सबको मिला के एक क्यूब जनरेट कर देना है. एंड सपोज द एज ऑफ द क्यूब इज ए हेयर. ओके, सो हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए उसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिखने हैं. तो आपको क्या करना है, इस ओरिजिन से आपने 3 पोजीशन चूज किए, 3 पॉइंट्स चूज किए आपने, ये एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड इन तीनों के जो वेक्टर्स हैं आपने उनको रिप्रेजेंट किया, वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, एंड दिस विल बी योर वेक्टर सी डैश. तो हमें इन तीनों प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को लिखना है कि हम कैसे लिखेंगे. तो आपको वेक्टर ए डैश लिखना है. तो इफ यू वांट टू गो एट दिस पॉइंट फ्रॉम दिस ओरिजिन, आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू नीड टू गो हाफ डिस्टेंस, दैट इज a/2 in x direction, also half distance, that is a/2 in y direction. So आपके वेक्टर क्या हो जाएगा, for this point your vector a dash will be a/2 I cap plus a/2 j cap. So this will be your first translation vector. Okay, so second point के लिए वेक्टर b dash आपका क्या हो जाएगा, आपको हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, आपको हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इन y डायरेक्शन, एंड सिमिलरली यू हैव टू टेक a/2 डिस्टेंस इन z डायरेक्शन. तो आपका वेक्टर v डैश हो जाएगा a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप. ओके, so this will be your vector v dash. Similarly you can write vector c dash here. So these 3 vectors are your primitive translation vectors for face centered cubic lattice. Okay, so आपको अब इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स लिखने हैं. तो यू हैव टू यूज द रिलेशन बिटवीन द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स एंड डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, मींस दिस रिलेशन. ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के जगह आपको वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश के वैल्यूज पुट करने हैं, एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ वेक्टर ए स्टार, वेक्टर बी स्टार एंड वेक्टर सी स्टार. So if you solve these relationship, you get these 3 vectors. So if you remember, these 3 vectors are basically the vectors, primitive translation vectors of body centered cubic lattice. Okay, so that means कि आपका reciprocal lattice जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का, वो बेसिकली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ही होता है. ओके, so let's discuss few problems related to reciprocal lattice. It's from CSIR NET exam 2013, and the problem is we have a lattice, and the lattice has following primitive vectors. A vector is 2 j cap plus k cap, vector b is 2 k cap plus I cap, and vector c is 2 I cap plus j cap. So ये आपके primitive translation vectors हैं, and you have to find the reciprocal lattice corresponding to these लैटिसेस. ओके, सो आपको इन 3 वेक्टर्स के लिए आपको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स लिखने हैं. सो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको जो रिलेशनशिप हमने लिखा था डायरेक्ट लैटिस वेक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के अंदर, यू हैव टू राइट द रिलेशन. तो आपका वेक्टर ए स्टार था 2 पाई वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी. तो इसी तरह से आपके दोनों वेक्टर्स बी स्टार और सी स्टार भी थे. तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है. सो आपको फर्स्ट ये वाला वेक्टर निकालना है रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, वेक्टर ए स्टार. तो उसके लिए आपको फर्स्ट ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. तो आप पुट कर दीजिए इन तीनों की वैल्यूज को, एंड बी क्रॉस सी निकालने के लिए आप ये डिटरमिनेंट मेथड यूज कर दीजिए. तो बी क्रॉस सी आपका हो जाएगा, पहले आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख लेते हैं, फिर इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वेट करते हैं. तो वेक्टर बी है आपका 2 के कैप प्लस आई कैप. ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 2. आपका वेक्टर बी में जे कैप नहीं है तो द मैग्नीट्यूड इज 0, एंड फॉर के कैप द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 2. ओके, वेक्टर सी के लिए आपका
आई कैप का मैग्नीट्यूड है 2 एंड जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 2 है, बट के कैप नहीं है तो मैग्नीट्यूड आपका 0 हो जाएगा. जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एंड यू विल गेट -4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू, एंड जस्ट सॉल्व दिस पोर्शन यू विल गेट 16. तो आपका वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी आपका हो जाएगा 16. जस्ट पुट द वैल्यू 16 here and vector A star will be 2 pi -4 I cap minus J cap minus K cap upon 16, क्योंकि B क्रॉस C का आपका जो वैल्यू था आपका ये था -4 I cap minus J cap minus K cap. ओके, सो सॉल्व दिस पोर्शन और फाइनली आपको A स्टार मिलेगा π/2 माइनस I cap प्लस J cap प्लस K cap. सिमिलरली आप B स्टार एंड C स्टार भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वेक्टर B स्टार डैश आपका है π/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आपका वेक्टर C स्टार हो जाएगा π/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. सो अभी हमने BCC और FCC के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकाले थे, तो वहां से आपको ये याद आ गया होगा कि दीज वेक्टर्स आर द वेक्टर्स ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. ओके, सो दैट मीन्स कि आपका जो ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकल के आए हैं, these vectors are basically the translation vectors of BCC lattice. Okay, and this will be your cube, and उस cube का आपका जो edge हो जाएगा that is π/2. So means आपका option A यहाँ पे correct option था. The second problem is from GATE 2008 exam, and the problem is the primitive translation vectors of the body centered cubic lattice are vector A is A/2 x cap plus y cap minus z cap, vector B equals to A/2 x cap minus x cap plus y cap plus z cap, and vector C is A/2 x cap minus y cap plus z cap. The primitive translation vector A, vector B, vector C of the reciprocal lattice are. Okay, so आपको रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम के अंदर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं फॉर BCC लैटिस इन डायरेक्ट लैटिस. सो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज वेक्टर्स बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज. ओके, हमने पहले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज किया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंड यहाँ पे क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम के अंदर आपका जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वो कैपिटल वेक्टर A एंड कैपिटल वेक्टर B एंड कैपिटल वेक्टर C हैं, तो आपने वेक्टर A स्टार के जगह पे आपने वेक्टर A लिखा है, एंड सिमिलरली वेक्टर B एंड वेक्टर C. सो आपको यहाँ पे वेक्टर A, B और C के वैल्यूज को पुट कर देना है एंड कैलकुलेट कर लेना है वेक्टर कैपिटल A. सो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C. तो आपका A का वैल्यू है A/2 x कैप प्लस y कैप माइनस z कैप, एंड पुट द वैल्यूज ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C. सो B क्रॉस C आपको निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है B का एंड C का. तो वी विल यूज द डिटरमिनेंट मेथड. So the constant in each term A, B, C is A/2. तो B और C के लिए आपका जो मैग्नीट्यूड है A/2 उसको आपने बाहर निकाल लिया, दैट विल बी योर A²/4. ओके, सो B के अंदर आपका x कैप का मैग्नीट्यूड है -1, y कैप का आपका मैग्नीट्यूड है 1 एंड z कैप का मैग्नीट्यूड इज 1. एंड इन वेक्टर C योर मैग्नीट्यूड फॉर x कैप इज 1, for y cap the magnitude is -1, and for z cap the magnitude is 1. Okay, so after solving this will be your A²/2 x cap plus y cap. तो आपको इन टर्म्स की जगह आपको जस्ट पुट कर देना है A²/2 x cap plus y cap. सो फाइनली आपको इन दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है. सो आपका ये हो जाएगा A³/2. इन द एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर A, पुट द वैल्यूज ऑफ B क्रॉस C. B क्रॉस C का वैल्यू आपका था A²/2 x कैप प्लस y कैप, एंड A डॉट B क्रॉस C का वैल्यूज हमने अभी निकाला, दैट इज A³/2. तो सॉल्व दिस इक्वेशन एंड आपका वेक्टर A हो जाएगा 2π/A x कैप प्लस y कैप. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C. तो आपका वेक्टर B हो गया 2π/A y कैप प्लस z कैप, एंड वेक्टर C इज 2π/A z कैप प्लस x कैप. ओके, सो हमने तीनों का वैल्यूज निकाल लिया है एंड दैट इज ऑप्शन डी. तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है.
Okay, so thanks for watching the video. If you like this video, press the like button and please subscribe our channel, and you can also share this video, and if you want to ask something, please comment. Thank you.